Hello everyone, welcome back to the new video today. So today we are going to cover from the class 8 science. The chapter name is microorganism friend and foe. Before that, I want to say you that if you're liking our content, you can subscribe to our channel, you can share it, you can like, or else if you're having any suggestion about the any changes or any something new, if you want, you can drop down in the comment box. So without wasting our time, we will proceed to the chapter that is microorganism friend and foe of the class 8 science. Now, what is mean by the microorganism? Microorganisms means like micro, like it's like at the micro level, which is like which may be visible or not visible with the naked eyes. मतलब वो चीज़ें ऐसी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आई से दिख सकते हैं या तो नहीं भी दिख सकते हैं, उतने छोटे वाले. एंड वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स sometime they are very friendly but sometime they are harmful for the human beings. इट मीन दैट कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत डेडलीस्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं. सो we will see this is like here we will look what are the microorganism exactly. Microorganism is a like class or you can say a group जो लाइक इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर डिफरेंट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जो सारे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप में हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, if in the coming slides we will see bacteria, fungi, virus, many more bacteria and fungus, algae and all we will see. and वो सारे कैटेगरी, वो सारे क्लास को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर. Okay, so this bacteria, protozoa, algae, virus, this all forms a group and this all together are called as a microorganisms, right? So let's see what the definition of microorganism is. See, microorganisms are microscopic. ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा होता है. लाइक इट्स लाइक नेकेड आई से हम उसे नहीं देख पाते. वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी दिस ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फाइन. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बहुत लाइक छोटे होते हैं साइज़ में. एंड ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. दिस ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर्स. हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर नहीं होता है. यूजुअली मतलब मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर्स होते हैं. नाउ moving to the first microorganism and that is bacteria. See, bacteria is one of the microorganism. एक बैक्टीरिया एक कैटेगरी है जो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आती है. एंड बैक्टीरिया इज हैविंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक. सो हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. सी, बैक्टीरिया भी क्या है? एक टाइप की माइक्रोऑर्गेनिज्म है. So definitely bacteria is also unicellular prokaryotic microorganism. and कुछ bacteria ऐसे होते हैं which are useful for the human beings, but there are some bacteria which are harmful for the human beings or for the living beings. See, हमने चैप्टर शुरू होते ही the title is the microorganism friend and foe. It mean that कुछ microorganism friendly होते हैं, कुछ microorganism enemy होते हैं. Okay, so here there are 4 types of bacteria: Bacillus, Vibrio, Cocci, Spirilla. Here some of the images are given. You can refer from here from this. See, Streptococcus pneumonia ये शेप में होता है. ये सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है. जब आप उस ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे, सो एट दैट टाइम यू विल फाइंड द शेप ऑफ दैट बैक्टीरिया इन दिस वे. ओके, सैल्मोनेला टाइप ही ऐसा दिखेगा.
Okay, so here this bacteria are there, you can refer from this slide. Moving to the fungi. See, fungi is also one of the microorganism. So fungi are saprophytic or parasitic organism. Saprophytic मतलब dead and decay materials पे जो रिसाइड करता है या वहाँ से फूड या न्यूट्रिशन लेता है, उसे हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं. पैरासाइटिक मीन्स लाइक वो किसी पर डिपेंड होके रहता है. दिस फंगीज डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सस्टेन देयर लाइफ. So fungi is having the characteristic of saprophytic and the parasitic organism. They are mostly multicellulars. हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूनिसेलुलर्स होते हैं. मोस्टली, इट्स नॉट कंपल्सरी कि सारे होते हैं. सो कुछ मल्टीसेलुलर्स भी होते हैं. एंड दिस आर नॉट माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये बिना माइक्रोस्कोप का भी हमें दिख सकता है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ अगर ब्रेड ख़राब हो जाता है या 5-6 डेज़ का हो जाता है या 10-20 डेज़ तक अगर हमारे घर में रहता है, तो वो ब्रेड में फंगी लग जाती है. ओके, तो वो फंगी हमें दिखाई देता है. ओके, सो इट मीन दैट कि नेकेड आइज से हमें दिखाई दे रहा है. हमें वो ज़रूरी नहीं है कि इस ब्रेड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है फिर हमें दिखाई देगा फंगी कहाँ पे है. सो दिस आर द नॉट माइक्रोस्कोपिक, इट कैन बी व्यूड विद द नेकेड आई. However, yeast is a unicellular and the microscopic organisms. Here, one example is given. Yeast is a unicellular and the microorganism. It is a microscopic organism. The next class is protozoa. The next is protozoa. So, protozoa is also single cell microscopic organism or the animal. Single cell means again it means the unicellular. Again it means the unicellular and which include flagellates, ciliates, spongions and many other forms. These are all the forms. ये सारे protozoa के forms हैं. And the few examples in this are amoeba, paramoecium, euglena, plasmodium, etc. So अगर हम if someone asks you amoeba comes in which category, whether it is coming in the bacteria, whether it is coming in the fungi or protozoa, so the answer will be protozoa. Fine. Now here it is. See, here the last one. पहले हमने बैक्टीरिया देखा, फिर हमने फंगी देखा, फिर प्रोटोजोआ देखा. The last one is the last microscopy is virus. Okay, so last microscope is virus, and nowadays the very famous virus is like very known to you, that is COVID-19. It is also one of the virus. It is also one of the virus. Okay, so virus are organism that possess nucleic acid but lack the replicating machinery. Thus virus cannot survive without a living cell. सी दिस स्टेटमेंट, ये जो लाइन है हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड-19 के वायरस को लेते हैं, कोरोना वायरस, सी कोरोना वायरस आर अफेक्टिंग टू द ह्यूमन बींग्स और द लिविंग बींग्स यू कैन से. सो ये लिविंग सेल्स पे ही एक्टिव रहता है, नॉन लिविंग थिंग्स पे वो एक्टिव नहीं रहता है. इट मीन दैट कि कुछ वक्त के लिए ही एक्टिव रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है वहाँ पे. दैट्स वाई इट इज़ टोल्ड दैट इफ़ यू आर रिसीविंग एनीथिंग और यू गेटिंग anything from the market or from anywhere, you have to sanitize the things or you have to sanitize places को भी sanitize किया जाता है, areas को sanitize किया जाता है स्प्रे के थ्रू, सैनिटाइजर स्प्रे के थ्रू. इवन हमारे हैंड्स वगैरह को हम सैनिटाइज करते हैं सो दैट वी कैन किल एट दैट स्टेज दैट कोरोना वायरस. सो इट इज़ सेड दैट वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ लिविंग सेल. अगर उसे लिविंग सेल मिल जाता है तो वो सर्वाइव करेगा एंड वहाँ से वो ग्रो करेगा. Viruses are also considered to be one of the borderline between living and non-living entities. Why it is called a borderline? Because वो non-living के through आता है या फॉर एग्जांपल हमने कुछ मार्केट से कुछ ऑब्जेक्ट लिया या किसी के थ्रू अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उस पर्सन ने हमें कुछ भी प्लास्टिक बॉटल है, न्यूज़पेपर है, बुक है, कुछ भी एक्सचेंज किया तो मे बी वो वहाँ पे स्टिक होके आ जाए और हमें लग जाए. सो इट इज़ सेड दैट कि बॉर्डर लाइन है लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़ के बीच में. A few examples are influenza virus, HIV virus, rabies virus, polio virus, tobacco, mosaic virus, etc. And now it is added a coronavirus also in this category.
नाउ ये तो सारी ऑर्गेनिजम्स थे जो लाइक अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, दैट इज़ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड अलगे। ह्यूमन बींग को अफेक्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करते हैं एंड सो ऑन। बट यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं। फार्मर्स जब प्लांट्स ग्रो करते हैं या क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दी होते हैं। कुछ क्रॉप्स में डिजीज़ लग जाती है तो वो क्रॉप ख़राब हो जाता है। कुछ फ्रूट्स में डिजीज़ लग जाती है। कभी कभी हम मार्केट से जो फ्रूट लाते हैं, कोई फ्रूट्स डिफेक्टिव रहते हैं। डिफेक्टिव मतलब कहीं से थोड़ा सा डार्क कलर रहेगा या कहीं थोड़ा सा इन्फेक्टेड होगा। सो दैट इज़ द अटैक ऑफ द यू कैन से दैट इज़ अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट द प्लांट्स। Okay, so there are certain pathogens can cause disease in the plants just like human being। जैसे ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज होता है बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है, वॉट एवर। सो वैसे ही प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजेंस होते हैं। इन द कमिंग स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द पैथोजेंस। ओके, सो डोंट वरी। Plants can be attacked by bacteria or the virus. Even the plants can be attacked by the bacteria and the virus. Several microorganisms cause disease in plants like rice, potato, wheat, sugarcane, orange, apple and others. ऐसे बहुत सारे plants हैं जो like bacteria, viruses और other microorganisms उन पे अटैक करते हैं and वो crop को ख़राब करते हैं। So this is the structure of very famous and very dangerous virus, that is COVID-19 और कोरोना वायरस। नाउ हमने ये तो देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ओके, बट अगर जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं विद द थिंग और द सब्सटेंस विच इज़ हार्मिंग आवरसेल्फ और हार्मिंग टू द ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स और व्हाट आर द स्टेप टू बी टेकन? Okay, nowadays you have heard about the vaccination, okay, COVID-19 vaccination, and that is हम वो vaccination इसलिए ले रहे हैं ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। Okay, so the same funda applies for other microorganism disease also. If that microorganism is attacking to the body, so doctors gives the vaccine or the vaccine is against that microorganism। अगर आज के डेट में हम जो वैक्सीन्स ले रहे हैं दैट इज़ ऑफ COVID-19, इट मीन दैट कि हम वो वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन ले रहे हैं कि वो वायरस हमारे बॉडी में जाके अटैक ना करे, हमारा बॉडी उस वायरस को डिफेंड करे एंड हम हमारी इम्यूनिटी लेवल मेंटेन रहे और हम हेल्दी मेंटेन रहें। सो अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। क्या होता है एक वैक्सीन? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ डिजीज़। एक क्या होता है, एक बेसिकली मतलब डिजीज़ होने से पहले वैक्सीनेशंस लिया जाता है ताकि फ्यूचर में वो डिजीज़ उनको ना हो। आर यू गेटिंग? सो दिस इज़ लाइक वो एक प्री इम्यूनिटी बिल्ड करता है बॉडी में, दिस इज़ नोन एज अ वैक्सीनेशन। Now what is antibiotic? See, these are the common terms कि ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक्स ले लेना चाहिए, ये ऐसा है वैसा है। So these are the some of the medical terms like what are the antibiotics? It is an organic or inorganic compound that inhibits and kills the microorganism। अगर हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर होता है, whether it is fungi, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक देते हैं उसके अगेंस्ट में। एंटीबायोटिक फॉर द फंगी, एंटीबायोटिक फॉर द वायरस, तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स आते हैं अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो जो उसके अगेंस्ट में दे फाइट और दे किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द एंटीबायोटिक्स। ओके, मोस्टली हम मेडिसिन को भी एंटीबायोटिक्स बोलते हैं कि दिस आर द एंटीबायोटिक्स गिवन बाय द डॉक्टर लाइक दिस। ओके, आई होप सो क्लियर अप टू हियर। नाउ व्हाट आर द पैथोजेंस? हमने प्लांट्स में देखा कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं। सी, पैथोजन उसे we say to pathogen to that organism or to any organism that causes the disease। कोई भी पैथोजन, अगर वायरस है तो वायरस एक पैथोजन है बिकॉज वायरस की वजह से एक डिजीज़ हो रही है।
फाइन, अगर वो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ अगर अफेक्ट करता है किसी ह्यूमन बींग को, या फंगी है या बैक्टीरिया है, अगर वो अफेक्ट करता है किसी लिविंग थिंग को, सो दैट बैक्टीरिया और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज अ पैथोजन। स्पेसिफिकली हम उसे पैथोजन कहते हैं। सो पैथोजेंस आर प्रोबेबली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, एंड दे आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस कैन बी अ पैथोजेनिक। आई होप सो क्लियर अप टू हियर। नाउ moving to the carrier and the vector. See, carrier means like for example अगर कोल्ड एंड कफ है एक पर्सन को, तो डेफिनेटली कोल्ड एंड कफ के वो पर्सन के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो डेफिनेटली देयर आर द चांसेस कि वो कोल्ड एंड कफ हमें भी लग जाएगा। सो अगर जिस पर्सन से हमें लग रहा है कोल्ड एंड कफ हमारे में ट्रांसमिट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, इट मीन दैट कि दैट फर्स्ट पर्सन इज़ अ कैरियर। दैट फर्स्ट पर्सन जो इन्फेक्टेड था कोल्ड एंड फीवर या कोल्ड कफ वगैरह से, या यू कैन से और एनी अदर डिजीज़ जो स्प्रेडिंग डिजीज़ होते हैं, दैट डिजीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। Like you can have the example of the coronavirus also. If the one person is infected, definitely if that person sneezes or exchanges that materials or the substances with the healthy person, definitely there are the chances to get the infection of the virus to the healthy person also. So जो infected person होता है अगर वो दूसरे healthy person को infect करता है, so the infected person is known as a carrier because वो उस पैथोजन को कैरी करता है या वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करके उसने दूसरे पर्सन को दिया है। Fine. So they can spread the infection since they already have the pathogens in their bodies. That's why in the COVID-19 situation the lockdowns implement किया जाता है so that people अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। like अगर आपको हुआ है तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन होना पड़ता है या एडमिट होना पड़ता है so that आप लोगों में स्प्रेड नहीं करो या लोगों के टच में ना आओ। So by this you can stop the spreading of the disease. Now what is vector? Vector is an organism. ये हम organism को बोलते हैं। For example, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप पे अटैक कर रहा है, लाइक बाइटिंग इंसेक्ट है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज ले लो। मॉस्किटोज से आपको क्या होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है। हियर दे हैव गिवन द स्पेसिफिकली डेंगू किससे होता है? एडिस मॉस्किटो, ओके, एनोफिलस मॉस्किटो स्प्रेड्स द मलेरिया। सो ये मच्छर के वजह से और मॉस्किटो के वजह से जो डिजीज़ हो रही है, सो ये जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है दैट ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर। फाइन, सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो एंड मॉस्किटो हियर विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर। दैट्स क्लियर। कैरियर कोई पर्सन हो सकता है जो कैरी करता है वायरसेस या इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस, और वेक्टर मतलब वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके वजह से वो डिजीज़ हुई है। Now there are two types of diseases, not two types of diseases. There are the diseases which spread through the airborne or through the air. That diseases are known as airborne diseases. जो air के through disease spread होती है उसे हम airborne disease कहते हैं। Best example is influenza is the best example of this kind of disease. Now waterborne disease. Waterborne disease मतलब जो पानी के through diseases होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अनहेल्दी वाटर पी लिया, डर्टी वाटर पी लिया, या अनहेल्दी था, मिनरल वाटर नहीं था, आप कंटिन्यूसली कुछ ऐसे डर्टी वाटर पीते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल एट द एंड यू विल सफ़र विद द सम ऑफ द डिजीज़, राइट। सो उस डिजीज़ को हम बोलेंगे कि वाटर बॉर्न डिजीजेस। थायराइड इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीजेस, और कंटेमिनेटेड वाटर इज़ अ होस्ट टू सेवरल पैथोजेंस। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब जो डर्टी वाटर होता है उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, मे बी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फाइन, सो हियर इज द चार्ट गिवन। फ्रॉम हियर यू कैन सी, ये फर्स्ट वाला कॉलम इज इंडिकेटिंग ह्यूमन डिजीज, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, malaria is caused by the protozoa,
ओके, प्रोटोजोआ इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज कॉज्ड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके वजह से हुआ है, मॉस्किटो के वजह से हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर एंड फीमेल एनोफिलिस, एंड दिस आर द सम ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स और द things which we have to do to avoid the causing of the malaria. So similarly you can refer all the disease from here, like thyroid microorganism is bacteria and it is caused by water. Fine. Now what is food poisoning? Sometime one or the other person are suffering with the food poisoning. Now food poisoning is like nowadays it has become the common because आजकल के diet में we are not following the balanced diet, like anytime we are getting the time we eat that, we are not following the even schedule, even we are not following the good meal or the good food or the food we should consume in the morning. जो हमें मॉर्निंग में खाना चाहिए शायद हम लंच में खा लेते हैं, जो हमें लंच में खाना चाहिए वो हम डिनर में खा लेते हैं या इवनिंग के स्नैक्स में खा लेते हैं. सो देर आर लाइक लॉट्स ऑफ imbalancing things happening, and due to the cause is food poisoning. We will see that when food contaminated with the pathogens or toxins are consumed, it causes food poisoning. What is mean by the food contamination? Food contamination मतलब like एक दिन का बना हुआ खाना है या like the हमें fresh food खाना चाहिए, right? But अगर वो खाना बन के 24 आवर्स हो गए या मोर देन 24 आवर्स हो गए तो डेफिनेटली देयर आर द चांसेस कि वो फूड ख़राब हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फूड दैट इज़ राइस, रोटी, दाल एंड सब्जी एंड ऑल दिस थिंग्स. सो देर आर चांसेस कि वो जो फूड आइटम्स हैं वो पैथोजन से अटैक हो गए हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक हो गए हो. अगर वैसा फूड आप कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है. द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ पेनिंग ऑफ द स्टमक और पेन इन द स्टमक. समटाइम बहुत ज़्यादा अगर पेन होता है तो देर इज़ अ डेथ ऑल्सो. नाउ हम फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? फूड को प्रिजर्व इज़ लाइक फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री. नाउ अगर हमारे किचन में भी, अगर हमारे घर में भी खाना बनता है तो योर मदर्स लाइक कीप्स इन द क्लोज यूटेंसिल्स, वो क्लोज यूटेंसिल्स में रखते हैं. एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. ओके, जब भी आपको निकालना होता है या खाना मम्मी सर्व करती है तभी वो उसे ओपन करके फिर से उसे ढक देते हैं. इट मीन दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रिजर्विंग योर फूड कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना गिर जाए या कोई इंसेक्ट ना गिर जाए कि जो स्पॉइल कर दें. Now certain chemicals inhibit the growth of the bacteria and increases the life of the cooked food. Food preservation ना सिर्फ हम किचन की चीज़ें नहीं देखेंगे. there are the industry like हम वेफर्स खाते हैं, कुकीज़ होती है, बहुत सारे पैकेट फूड्स होते हैं, लाइक चिवड़े के पैकेट्स होते हैं जो कंपनी के थ्रू आते हैं या भेल के पैकेट्स है, कुरकुरे के पैकेट्स हैं. वो इतने महीने तक मार्केट में कैसे सरवाइव कर सकते हैं जो कि एक एडेबल आइटम्स है. सो उसके अंदर द इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री ऐड द फूड प्रिजर्वेशंस और फूड प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड करते हैं ताकि उनका जो एडेबल प्रोडक्ट है काफ़ी महीने तक चले. ओके, काफ़ी मंथ तक वो चले एंड इन दिस वे इट सर्कुलेट्स इन द मार्केट एंड वेन एवर वी रिक्वायर्ड वी परचेज दैट. Certain simple preservation methods can be carried out at our home also. There are some methods. Your mother might be making the pickles. So pickles में मम्मी बहुत ज़्यादा salt डालती है. The pickles are salty. Okay, so salt is one of the home or you can say it is one of the food preservative जिससे आपका पिकल जो है वो सालों साल तक वो फ्रेश ही रहता है, वो ख़राब नहीं होता. सो हियर यू कैन सी द सम ऑफ द स्टोर जार्स जो हम स्टोर करके रखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो फूड आइटम है वो फ्रेश रहता है काफ़ी दिनों तक. सो देर आर सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऑल्सो. जो फूड इंडस्ट्रीज़ है वो केमिकल्स डाल के फूड को प्रिजर्व करते हैं एंड दैट केमिकल्स आर हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स. Like for example sodium metabisulfate, sodium benzoate are the commonly used chemical preservatives. So these are the two names जो chemical substance है and majorly जो food
इंडस्ट्रीज़ होते हैं, फूड कंपनीज होते हैं, दे यूजेस दिस काइंड्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स टू रिस्टोर और टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द फूड आइटम, दैट इज बिस्किट हो गया, कुरकुरे और एनी अदर आइटम, एनी फूड आइटम। हाँ, यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट, वी हैड ऑलरेडी डिस्कशन ऑन दिस कि पिकल्स वगैरह जो हमारे घर में बनता है, इट इज़ स्टोर्ड और उसकी जो लाइफ है या ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड द केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रिजर्वेटिव एट होम। Vegetables and the pickles are using salt, as a salt removes water and kills bacteria and fungus. So the main function of the salt is that bacteria and fungus को वो kill करता है। सी शुगर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिजर्वेटिव। हमारे जो जैम होता है, जेलीज होता है, स्क्वैशेस जो होते हैं, उसमें हम शुगर डालते हैं, शुगर ज़्यादा स्टोर किया रहता है। आप अगर आपने जैम खाया है तो दैट इज़ बहुत ज़्यादा शुगरी होता है। इट मीन दैट कि उसमें शुगर डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है एंड काफ़ी महीने तक हमारा वो जैम चलता है। विनेगर, विनेगर इज़ ऑल्सो यूज इन द पिकल्स टू प्रिजर्व इट। Pasteurization, it's one of the scientific method to preserve the liquid substance majorly. The basic example is milk. हमारा जो दूध होता है या मिल्क होता है जो मार्केट में आता है और इट्स लाइक फॉर 1 डे और 2 डे तक लाइक इट्स गुड इन कंडीशन, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो वो जो मिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनिमल से, काउ, बफेलो, कैटल से, सो उसे सुपर हीट किया जाता है, मतलब एक हाई टेम्परेचर पे सुपर हीटिंग किया जाता है, उसे फिर कूलिंग किया जाता है। जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो, मेजरली लिक्विड थिंग्स को, तो उसमें जो पैथोजेंस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए हैं तो डेफिनेटली आपका सब्सटेंस ख़राब नहीं होगा एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज प्रेशराइजेशन। फाइन, एंड इट इज़ मेजरली यूज्ड इन द मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स। Okay, so here we are on the last topic, that is nitrogen fixation, and through this diagram you will understand what is nitrogen cycle. Okay, so nitrogen cycle is nothing but the nitrogen which is present in the atmosphere get back to the soil or get back to the different viruses or the bacteria or get back to the plants, and again it goes back to the environment or again it goes back to the atmosphere. ओके, दिस इज़ अ साइकिल, इसको हम साइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साइकिल देखोगे, डेंट्रिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है तो वो क्या रिलीज़ कर रहा है? नाइट्रोजन रिलीज़ कर रहा है। नाउ नाइट्रोजन कौन कंज्यूम कर रहा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जब भी आप कोई प्लांट ग्रो करते हो, मेजरली लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं। सो दे कंज्यूम द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। सो सॉइल में कहाँ से आया है नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर से आया है एंड वो प्लांट्स के रूट्स में देता है। सो हियर देयर आर मैनी अदर फॉर्म्स, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है कि नाइट्रोजन कौन से फॉर्म्स में सर्कुलेट होता है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में। ओके, सो हियर NH3 है, NO3 है, NO2 है, NH4 है, यहाँ पे N2 है। सो दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड दिस आर द साइकिल, इट इज़ कॉल्ड द साइकिल, कि एवरी स्टेज पे, एवरी एनवायरमेंटल स्टेज पे नाइट्रोजन एक अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है एंड दिस इज कॉमनली नोन एज अ नाइट्रोजन साइकिल। सो व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? बेसिकली इट इज़ अ बायोजियोकेमिकल साइकिल बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ वेरियस केमिकल फॉर्म्स। हमने देखा यहाँ पे कि वो वेरियस केमिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। पहले N2 है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NH4, then NO2, then NH3, NO3. So these are the various forms. इसे क्या बोलते हैं हम? वेरियस केमिकल फॉर्म्स बोलते हैं एंड ये सर्कुलेट होता है एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल पे एंड मराइन इकोसिस्टम पे। So here we are ending with the microorganism friend and foe chapter. If you're having any doubt related to this, you can drop down in the comment box and surely I will reply to those comments. Okay, so thank you for watching. You can subscribe to our channel, you can share it, you can like it. Thank you so much.